Hello children, this is Natasha ma'am. I'm back again with another video. Today we are going to learn a short story from Treasure Trove ICSE Class 9 syllabus, Old Man at the Bridge. I will give you all a gist of the story and then I'm going to proceed with explaining the lesson in detail. Now let's get started. The narrator, a soldier, meets an old man at a pontoon bridge across the Ebro River. We see here there is a narrator who is narrating the story. He is a soldier, happens to meet an old man at the pontoon bridge across the Ebro River. We see the old man is sitting by the road and is too tired to move further. The narrator asks the old man his whereabouts. The old man tells the narrator that he belongs to San Carlos and had to leave the town and his animals because of artillery fire by the enemy. The narrator tells the old man to walk up the road and catch a ride on a truck to Barcelona since it's not safe here. The old man thanks the narrator but expresses his concern for the fate of his animals, a cat, 2 goats and 4 pairs of pigeons. The old man tries to get up and walk, but is too tired and sinks back down. The narrator has to go away because he is on duty. So he moves on, leaving the old man at the bridge, waiting for his impending death. So children, this was the gist of the story. We see that there are 2 characters here, narrator and an old man. Narrator is the soldier, and then there is this old man who is worried about his animals. Now let's read what the story says. An old man with steel-rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. There was a pontoon bridge across the river and carts, trucks and men, women and children were crossing it. The mule-drawn carts staggered up the steep bank from the bridge with soldiers helping push against the spokes of the wheels. The trucks ground up and away, heading out of it all, and the peasants plodded along in the ankle-deep dust. But the old man sat there without moving. He was too tired to go any further. So here we see, एक बहुत बूढ़ा सा आदमी है. उसने स्टील का चश्मा पहना हुआ है, स्टील फ्रेम का. उसके कपड़ों में बहुत डस्ट लगा हुआ है. वो काफ़ी बूढ़ा है और थका हुआ सा महसूस कर रहा है. वहाँ पर बैठा है. वहाँ पर हमें एक पॉन्टून ब्रिज दिख रहा है, दैट इज़ अक्रॉस द रिवर. और उस ब्रिज पर से कार्ट्स, ट्रक्स, मेन, विमेन, चिल्ड्रन वो सब क्रॉस कर रहे हैं. म्यूल ड्रॉन कार्ट्स जो है वो धीरे धीरे स्टीप बैंक से चढ़ते हुए उतर रहा है. सोल्जर्स उनको हेल्प कर रहे हैं. ट्रक्स जो हैं वहाँ से निकल रहे हैं सबको लेकर. पेजेंट्स जो हैं उनके एंकल डीप डस्ट में उनके पैर घुस रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इतना डस्ट है. लेकिन वहाँ जो ओल्ड मैन है वो बिना हिले वहीं बैठा हुआ है. शायद वो बहुत थक चुका है और आगे जाने की उसकी हिम्मत नहीं है. It was my business to cross the bridge, explore the bridgehead beyond and find out to what point the enemy had advanced. Now who is saying this? This is the soldier, the narrator. वो कहता है कि मेरा कार्य यह था कि मुझे देखना था कि ब्रिज क्लियर है कि नहीं और कितनी करीब एनिमी जो है वो आगे आ चुके हैं. इसलिए वो जगह को खाली करना चाहता था ताकि वहाँ के सब लोग सुरक्षित दूसरी जगह पहुँच सके. I did this, वो कहता है मैंने ये किया, and returned over the bridge. There were not so many carts now. काफ़ी लोग वहाँ से जा चुके थे. कुछ कार्ट्स ही बचे थे. And very few people on foot. और कुछ लोग थे जो चल रहे थे. But the old man was still there. लेकिन old man अभी भी वहीं बैठा था. मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि मुझे पूछना चाहिए कि ये यहाँ क्यों बैठा है जब सारे लोग जा रहे हैं. ये किसने सोचा? सोल्जर ने. नरेटर ने ऐसा सोचा. सो वी सी द नरेटर आस्क्स हिम, वेयर डू यू कम फ्रॉम? आप कहाँ से आए हैं? फ्रॉम सैन कार्लोस, ही सेड एंड स्माइल. तो वो बूढ़ा सा आदमी जो है वो कहता है मैं सैन कार्लोस से आया हूँ. और जैसे ही उसने अपने नेटिव प्लेस की बात की, अपने गांव की बात की, उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई.
That was his native town and so it gave him pleasure to mention it and he smiled. ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है कि बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि ओल्ड मैन ने क्यों स्माइल किया सैन कार्लोस का जब उसने नाम लिया, तो आपको बताना है that since it was his native town and it gave him pleasure to mention it, therefore he smiled. The old man goes on to explain, I was taking care of animals. He explained. Oh, I said, not quite understanding. नरेटर को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि उसने कहा कि मैं अपने एनिमल्स की सेवा कर रहा था. Yes, he said, I stayed, you see, taking care of animals. I was the last one to leave the town of San Carlos. So he said, yes, I stayed, you see. मैं वहीं पर था. आप ठीक समझ रहे हैं. मैं वहीं था क्योंकि मैं अपने एनिमल्स की देखभाल कर रहा था. I was the last one to leave the town of San Carlos. तो उस बूढ़े आदमी ने कहा नरेटर से, जो कि सोल्जर है, that मैं आखिरी बंदा था वहाँ से निकलने के लिए. He did not look like a shepherd nor a herdsman. And I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his steel rimmed spectacles and said, what animals were they? मैं थोड़ा सा चौंक गया क्योंकि वो एनिमल्स की बात कर रहा था. ना तो वो शक्ल से कोई हर्ड्समैन लग रहा था, ना शेपर्ड, और उसके कपड़ों से भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था. उसके कपड़ों में काफ़ी डस्ट लगा था, उसके फेस पे भी काफ़ी डस्ट लगा था, और उसने स्टील रिम स्पेक्टिकल्स भी पहने हुए थे. तो मैंने पूछा किस जानवरों की बात कर रहे हैं आप? ये नरेटर ने पूछा, जो कि सोल्जर है. वेरियस एनिमल्स, ही सेड एंड शुक हिज हेड. आई हैड टू लीव देम. तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि बहुत सारे जानवर थे और मुझे उन्हें अफसोस छोड़ना पड़ा. I was watching the bridge and the African-looking country of the Ebro Delta and wondering how long now it would be before we would see the enemy and listening all the while for the first noises that would signal that ever mysterious event called contact, and the old man still sat there. तो I was watching the bridge. मैं अपना इसकी बातें तो मैं सुन रहा था, इस बूढ़े आदमी की बातें मैं सुन रहा था, लेकिन जो मेरा कार्य है मैं उसमें भी काफ़ी अलर्ट था क्योंकि मुझे काफ़ी चेक करना था कि कितने आगे एनिमीज़ एडवांस कर चुके हैं, और मैं हर वो सिग्नल की सुनने की चेष्टा कर रहा था कि कहीं से कोई नॉइज़ तो नहीं आ रही और कांटेक्ट तो नहीं हो गया. कांटेक्ट मतलब वॉर तो नहीं शुरू हो गया. लेकिन ओल्ड मैन वहीं पर बैठा रहा. फिर मैंने उससे पूछा, व्हाट एनिमल्स वर दे? कौन से जानवर थे? देयर वर 3 एनिमल्स ऑल टुगेदर, ही एक्सप्लेन. देयर वर 2 goats एंड अ कैट एंड देयर वर 4 pairs ऑफ पिजन्स. तो उसने बताया कि मेरे पास 3 जानवर थे, 2 goats थे, 1 कैट था और 4 pairs ऑफ पिजन्स थे. तो मैंने उससे पूछा, नरेटर ने उससे पूछा, एंड यू हैड टू लीव देम? तो बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, येस, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, बिकॉज ऑफ द एनिमीज एडवांसिंग एंड फायरिंग, आई हैड टू लीव देम. द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी. कैप्टन ने मुझे आदेश दिया था कि मैं गाँव छोड़ दूँ. एंड यू हैव नो फैमिली? आई आस्क्ड. तो नरेटर ने उससे पूछा कि तुम्हारा कोई फैमिली मेम्बर नहीं है? वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज. तो साथ साथ वो अपना कार्य भी कर रहा था. नरेटर काफ़ी अलर्ट था. Where a few last carts were hurrying down the slope of the bank. जहाँ पर कुछ आखिरी कार्ट्स थे जो फटाफट वहाँ से निकल रहे थे. No, he said. तो बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मेरी कोई फैमिली तो नहीं है. Only the animals I stayed. अगर फैमिली की बात कहो तो मेरी फैमिली में मेरे एनिमल्स ही थे. द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट. कैट की मुझे कुछ ज़्यादा चिंता नहीं क्योंकि कैट काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं. अ कैट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ, बट आई कैन नॉट थिंक दैट विल बिकम ऑफ अदर्स. लेकिन मुझे बाकी 2 जानवरों की बड़ी चिंता है, पिजन्स की और गोट्स की. व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू? आई आस्क्ड. मैंने उससे पूछा, तुम किसी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो या किसी पार्टी को तुम सपोर्ट करते हो? तो बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, ही सेड. आई एम 76 years old. आई हैव कम 12 kilometers नाउ एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फर्दर. कहते हैं मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता. मैं 76 years old हो चुका हूँ. 12 किलोमीटर मैं ऑलरेडी तय करके आ चुका हूँ और अब मुझ में ताकत नहीं है कि मैं और आगे जा सकूँ. दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप, आई सेड. मैंने उसको वॉर्न किया, आगाह किया कि यहाँ पर जगह जो है वो सेफ़ नहीं है, आप यहाँ ना रुके. इफ़ यू कैन मेक इट, अगर आप थोड़ी कोशिश करें तो ट्रक्स आपको रोड पे मिलेंगे
जहाँ से वो टोटोसा के लिए निकलते हैं। आई विल वेट अ वाइल ही सेड। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है मैं थोड़ा देर और रुकना चाहूँगा एंड देन आई विल गो, और फिर मैं चला जाऊँगा। वेयर डू द ट्रक्स गो? तो बूढ़े आदमी ने पूछा ट्रक्स कहाँ जा रहे हैं? तो नरेटर ने बताया टुवर्ड्स बार्सिलोना। आई टोल्ड हिम। आई नो नो वन इन दैट डायरेक्शन ही सेड। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं बार्सिलोना जाकर क्या करूँगा, मैं वहाँ किसी को नहीं जानता। बट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन वेरी मच। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को एडवाइस दी और आपने मेरे बारे में इतने अच्छा सोचा। He looked at me very blankly and tiredly. वो ओल्ड मैन जो था, बूढ़ा आदमी, बड़ा हताश सा देख रहा था, बड़ा थका हुआ सा देख रहा था सोल्जर को। and then said, having to share his worry with someone, the cat will be all right, I am sure. There is no need to be unquiet about the cat. But the others, now what do you think about the others? तो उसे लगा कि कोई भी तो उससे बात करने वाला यहाँ है नहीं, यहाँ पर सोल्जर है, तो क्यों ना मैं अपनी व्यथा इस सोल्जर को ही सुना दूँ। तो फिर मैंने उसके साथ अपने विचार व्यक्त किए अपने जानवरों के बारे में, और उसको बताया कि कैट तो बिल्कुल ठीक रहेगी क्योंकि कैट अपना देखभाल कर सकती है, लेकिन मेरे बाकी जानवरों का क्या होगा। तो नरेटर कहता है वाई दे विल प्रॉबली कम थ्रू इट ऑल राइट, वो लोग भी काफ़ी ठीक ही होंगे, आप क्यों चिंता करते हैं। तो ओल्ड मैन कहता है वाकई ऐसा होगा, यू थिंक सो? वाई नॉट, नरेटर ने कहा क्यों नहीं। वॉचिंग द फार बैंक वे नाउ देवर नो कार्ड्स। देखो यहाँ पर नरेटर जो है वो बात ज़रूर बूढ़े आदमी से कर रहा है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी बिल्कुल अच्छे से निभा रहा है। वो हर बार अलर्ट है और हर बार चेक कर रहा है कि रास्ता साफ़ है कि नहीं, सारे लोग सुरक्षित जगह पहुंच रहे हैं कि नहीं, एनिमीज़ कितना एडवांस कर चुके हैं। You think so? Why not? I said, watching the far bank where now there were no carts. But what will they do under the artillery when I was told to leave because of the artillery? तो बूढ़े आदमी का सवाल ये था कि आप कहते हैं कि जानवर ठीक होंगे, अगर इंसान ठीक नहीं रह पा रहे इस फायरिंग में, तो जानवर कैसे ठीक रह सकते? जब मुझे बोला गया कि मैं एक सुरक्षित जगह में चला जाऊं ये गांव छोड़कर, तो मेरे जानवरों के लिए कैसे सुरक्षित होगा अगर फायरिंग होगी तो। Did you leave the dove cage unlocked? I asked. तो मैंने उससे पूछा कि आपने पिंजरा खोल के रखा था। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया yes. Then they'll fly. तो नरेटर ने कहा तो फिर किस बात की चिंता, वो लोग तो फ्लाई कर लेंगे, उड़ जाएंगे। Yes, certainly they'll fly. But the others, it's better not to think about the others, he said. तो कहता है अब आप दूसरों के बारे में ना सोचें इतना। If you are rested, I would go, I urged. मैंने बोला अगर आप ने रेस्ट कर लिया है तो आप प्लीज़ यहाँ से जाइए क्योंकि मुझे भी जाना है। गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ, आप उठिए और जाइए, कोशिश करिए। थैंक यू ही सेड एंड गॉट टू हिज फीट, स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड देन सैट डाउन बैकवर्ड्स इन द डस्ट। बेचारा इधर से उधर हिलते डुलते आगे बढ़ा, कुछ ही कदम आगे चला था, फिर बेचारा बैठ गया। I was taking care of animals, he said dully, but no longer to me. I was only taking care of animals. तो कहता है कि मैं तो अपनी जानवरों की देखभाल कर रहा था, बट आज वो जानवर मेरे साथ है नहीं, मैं तो केवल जानवरों के लिए ही जी रहा था। There was nothing to do about him. अब सोल्जर को समझ में आ गया कि ये बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो ज़िंदगी से हार गया हो, उसमें जीने की इच्छा ही ना हो। It was Easter Sunday and the fascists were advancing towards the Ebro. Fascists are the enemies which were advancing towards the Ebro Delta. Fascists are the parties and Nazis are the two parties. Fascists and Nazis are the two parties where they were actually trying to become, they were actually dictators and they were trying to capture each and every place there. It was grey overcast day with low ceiling, so their planes were not up. तो किस्मत इस तरह से अच्छी थी क्योंकि काफ़ी क्लाउड सा था, प्लेन्स ऊपर जा नहीं सकते थे। That and the fact that cats know how to look after themselves, ये बात उसको थोड़ी सी राहत दे रही थी। एक तो फाइटर प्लेन्स ऊपर नहीं दिख रहे थे, दूसरा कैट्स जो है वो अपना ख्याल खुद रख सकती थी। वॉज ऑल द गुड लक दैट ओल्ड मैन वुड एवर हैव। बस केवल यही गुड लक उसके साथ था कि एनिमीज़ एडवांस नहीं कर रहे थे अभी और
कैट्स अपने आप को देखभाल कर सकते थे, बाकी वो ज़िंदगी से हारा हुआ महसूस कर रहा था और अपने आप को अपनी किस्मत के हाल छोड़ दिया था उसने. So this was the story, children. I hope you all must have understood. Thank you so much. Have a good day.